Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of share-based payment, which is given in CMA final paper number 17 CFR study note number 6, that is share-based payment. So in this video we will solve illustration number 4. Grant with a performance condition in which the exercise price varies, category D. So this is the type of question. Just ignore this. Don't confuse by this sentence. This is the type of question. Our question is starting from this. At the beginning of year 1, an entity grants to the senior executive 10,000 share option. Okay, so here senior executive के लिए 10,000 share option मतलब number of shares दिया गया है year 1 में, conditional upon the executive remaining in the entity employment until the end of 3 years. So here we are getting number of shares and this is the vesting period because continuous 3 years का बोला है ना, तो हम लोग का vesting period कितना हो गया, हम लोग का vesting period हो गया 3 years. Okay. उसके बाद next, the exercise price is 40. However, the exercise price drops to 30 if the entity's earning increase by at least average 10% per year over 3-year period. So this is the condition that exercise price will drop down if the average अर्निंग जो भी है कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा 10% से पर ईयर ओवर 3 years पीरियड. ओके, on the grant date the entity estimates that the fair value of share option with an exercise price of 30 is 16 per option. Okay, we all are know that if exercise price and fair value both are given in the question, then in any condition we have to consider fair value. Okay, don't confuse with this exercise price. We have to consider fair value. हम लोग को पता है कि कौन सा भी प्राइस देने दो, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए फेयर वैल्यू. सो फेयर वैल्यू कितना बोला है, सी एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रहेगा तो फेयर वैल्यू 16 रहेगा, ऐसा सेंटेंस है. ओके, इफ एक्सरसाइज प्राइस इज 30 देन फेयर वैल्यू विल बी 16. दिस इज द सेंटेंस. नेक्स्ट, इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज 40 देन एंटिटी एस्टिमेट्स दैट द शेयर ऑप्शन हैव फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर ऑप्शन. ओके, एक्सरसाइज प्राइस 40 रहेगा तो फेयर वैल्यू कितना रहेगा, फेयर वैल्यू रहेगा 12. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग को बोला है ड्यूरिंग द ईयर 1 द एंटिटी अर्निंग इंक्रीज बाय 12% एंड द एंटिटी एक्सपेक्ट दैट द अर्निंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एट दिस रेट फॉर द नेक्स्ट 2 years. इसका हम लोग को कुछ नहीं करना रहता है, उन लोग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 years में भी वही रेट से होगा, तो होने दो. हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ यही देखना है कि ईयर 1 में कितना इंक्रीज हो गया, दैट इज़ 12% से इंक्रीज हो गया. ओके, अभी 12% बोला है. ओके, इधर सेंटेंस अच्छे से देखना है. सी एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली 40 रहता है बट एक्सरसाइज प्राइस 30 हो जाएगा अगर अर्निंग इंक्रीज बाय एटलीस्ट मतलब मिनिमम 10% और मैक्सिमम कितना भी. एटलीस्ट मतलब क्या होता है 10 और मोर देन 10. ओके, सो इधर क्या हो रहा है 10% से ज़्यादा यानी कि 12% हो रहा है, तो ये केस में हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 30. और अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो हम लोग का फेयर वैल्यू कितना हो गया 16. ओके, in this case the earning is increased by 12%. So this is the condition, if earning will increase by at least 10% means 10% and more than 10%. So here 12% increase is there. So in that case exercise price will be 30 and because of this 30 exercise price the fair value will be 16. Okay, while solving the question I'll explain this again. Okay, so here we have completed up to this. Okay, the entity therefore expect that the earning target will be achieved. Okay, उन लोग को एक्सपेक्ट करते हैं तो छोड़ दो, उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद and hence the share option will have an exercise price of 30. See, they are giving us exercise price ready made. अगर नहीं भी दिया तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि एक्सरसाइज प्राइस कितना होगा और फेयर वैल्यू कितना, क्योंकि परसेंटेज दिया है. परसेंटेज ये जो है वो 10% से ज़्यादा है. 10% से ज़्यादा है यानी कि कितना हो गया 30 हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस हो गया. और अगर एक्सरसाइज प्राइस 30 है तो फेयर वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया. ठीक है. During the year 2, the entity's earnings have increased by 13%. Okay, 13% is also more than 10%. So exercise price will be 30 and fair value will be 16. Okay, and the entity continues to expect that the earnings target will achieved. Okay, during 3 year
the entity earnings increase by only 3%. Okay, so 3% is less than this 10%. Okay, so in this case exercise price will be 40, and due to this exercise price the fair value will be 12, and therefore the entity target was not achieved. Okay, the executive completes 3 years service and therefore satisfy the service condition because the earning target was not achieved. Okay, the 10,000 vested shares have an exercise price of 40. ठीक है, उन लोग ने 40 जो एक्सरसाइज प्राइस है वो बता के दिया है, नहीं बताया होता तो भी ये 3% के हिसाब से हम लोग को समझ में आता कि एक्सरसाइज प्राइस 40 है तो फेयर वैल्यू 12 रहेगा. ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस कंडीशन अगेन वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सो हम लोग को क्या हैबिट है कि हम लोग पूरा कंडीशन अच्छे से लिख के लेते हैं, तो वही हम लोग इधर करेंगे. सी, आफ्टर दैट दिस इज़ द पार्ट ऑफ आंसर. ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आंसर का पार्ट है, तो उसको प्लीज़ रीड मत करो क्योंकि वो बाय मिस्टेक आंसर के पहले प्रिंट हो चुका है. तो डोंट कंसिडर दिस इज़ द पार्ट ऑफ आंसर. आवर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड इट एंड अप टू दिस only. So this is not a part of question, this is the part of answer. So question starts from here and it ends to this only. Okay, so let's write that condition. Okay, condition क्या लिखा है. See, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कंडीशन क्या लिखा है. सी, एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली कितना है, एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली कितना है. सी, दिस इज़ द वर्किंग नोट. एक्सरसाइज प्राइस नॉर्मली है ₹40. ओके, ₹40 है. एक्सरसाइज प्राइस हम लोग का नॉर्मली 40 है. सी, एंड अगर अर्निंग जो भी कंपनी का अर्निंग है वो एटलीस्ट 10% यानी कि 10% एंड मोर देन 10% अगर रहेगा तो एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 30. ठीक है. इफ earnings will be 10% or more than 10%, then exercise price will be ₹30. एक्सरसाइज प्राइस विल बी ₹30. ऐसा कंडीशन है. नॉर्मली 40 रहता है, लेकिन अगर कंपनी का अर्निंग एटलीस्ट 10% मतलब 10% और मोर देन 10% अगर रहेगा तो एक्सरसाइज प्राइस रहेगा 30. ऐसा हम लोग को वो बोला है कंडीशन. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट. दिस इज द कंडीशन पार्ट, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट. नाउ नेक्स्ट वन. सी, हम लोग को क्या क्या चाहिए. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या है. सी, सीनियर एग्जीक्यूटिव बोला है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना आएगा 1. ओके, इधर क्या बोला है स्पेसिफिक फॉर सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना रहेगा 1, बिकॉज सीनियर एग्जीक्यूटिव इज ओनली 1. सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज 1. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000 बिकॉज शेयर ऑप्शन बोला है यानी कि वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको 10,000 शेयर मिलेगा. सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 10,000. वी गॉट द 2 थिंग्स. नाउ वी रिक्वायर्ड फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन कंडीशन. आफ्टर दैट वेस्टिंग पीरियड कितना है, मतलब जो हम लोग करते हैं ना एक्सपायर पीरियड डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, दैट इज टोटल वेस्टिंग पीरियड इज 3 years. सो फॉर 1 year इट इज़ 1/3, for second year it is 2/3, for third year it is 3/3. So we required only fair value as per condition. बाकी सब चीज़ें रेडीमेड दिया है, ओनली जो फेयर वैल्यू है वो हम लोग को कंसिडर करना है. ओके, ठीक है. चलो हम लोग फर्स्ट ईयर का सोच लेते हैं. ओके, हम लोग फर्स्ट ईयर का सोच लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो फेयर वैल्यू का कंडीशन है वो लिख के रखेंगे. सी, on the grant date the entity estimates that the fair value of a share option with an exercise price is 30, it is 16. यानी कि क्या, एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा तो फेयर वैल्यू कितना रहेगा 16 रहेगा. बस उतना ही लिखना है. सी, एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रहेगा तो फेयर वैल्यू कितना रहेगा, फेयर वैल्यू इट इज़ 16. ओके, एक्सरसाइज प्राइस 30 रहेगा तो फेयर वैल्यू 16 रहेगा, और एक्सरसाइज प्राइस 40 रहेगा तो फेयर वैल्यू 12 रहेगा. ओके, 40 एक्सरसाइज प्राइस के लिए फेयर वैल्यू 12 है. बस इतना ही लिखना है. 40 एक्सरसाइज प्राइस के लिए फेयर वैल्यू कितना है, फेयर वैल्यू 12 है. ओके, सो इधर हम लोग ने वो भी कंडीशन लिख के रखा है. अभी सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है. सी, वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस. Now during the year 1 the entity's earning increased by 12% and the entity expects that the earning will continue to increase at this rate over the next 2 years. Okay, the entity therefore expects that the earning target will be achieved
एंड हेंस द शेयर ऑप्शन विल हैव एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30. ओके, तो हम लोग को बोला है कि ईयर 1 का डेटा पूरा इधर तक दिया है. सो ईयर 1 में एक्सरसाइज प्राइस 30 हो गया, क्योंकि अर्निंग कितना हो गया, कंपनी का इंक्रीज कितना हो गया, 12%. ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज 1 बिकॉज ओनली सीनियर एग्जीक्यूटिव इज देयर. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो हम लोग का फिक्स है 10,000. ओके, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग को चाहिए फेयर वैल्यू. ओके, फेयर वैल्यू चाहिए. ठीक है, चलो हम लोग को क्या बोला है, फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 30 है. ठीक है, तो एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 है तो फेयर वैल्यू कितना होता है, एक्सरसाइज प्राइस 30 के लिए फेयर वैल्यू होता है 16. सो हम लोग इधर लेंगे 16. ओके, मल्टीप्लाइड बाय एक्सपायर पीरियड इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड इज 3. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कैलकुलेशन फॉर ईयर 1. ओके, वैसे ही हम लोग को नेक्स्ट 2 ईयर्स का करना है. ठीक है, चलो अगर ये हम लोग को एक्सरसाइज प्राइस नहीं दिया होता तो भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, इफ़ दिस एक्सरसाइज प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन ऑल्सो वी कैन फाइंड इट आउट. सी 12% इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू. अर्निंग में इंक्रीज कितना हो गया, 12%. सी व्हाट इज द कंडीशन, इफ अर्निंग विल इंक्रीज बाय 10% और मोर दैन 10%, इन दैट केस एक्सरसाइज प्राइस विल बी 30. सो 30 एक्सरसाइज प्राइस है तो फेयर वैल्यू कितना है, 16. तो अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता एक्सरसाइज प्राइस 30, फिर भी हम लोग ने फाइंड आउट किया होता. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड ईयर 1. नाउ फॉर ईयर 2, सी वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस. नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2 द एंटिटी अर्निंग इंक्रीज बाय 13%. the entity continues to expect that earning target will be achieved. एंड अगेन नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग ईयर 3, यानी कि ईयर 2 का डेटा इतना ही है. क्या बोला है कि अर्निंग कितना इंक्रीज हो गया, 13% से, एंड कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि उन लोग का टारगेट अचीव होगा. ठीक है, सो हियर अर्निंग्स हैव इंक्रीज बाय 13%. कंपनी एक्सपेक्ट करता है, वो सब पार्ट छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना है. सिंपली वी हैव टू कंसिडर दैट अर्निंग इंक्रीज बाय 13%. सी 13% से जो भी अर्निंग है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, सी 10% और मोर दैन 10% अगर अर्निंग इंक्रीज हो रहा है तो एक्सरसाइज प्राइस कितना होता है, 30. okay, if earnings are increased by 10% or more than 10%. okay, so here in year 2 earnings are increased by 13%, so it is more than 10% na, so exercise price will be 30. And if exercise price is 30 then fair value is 16. okay, so for exercise price 30 fair value is 16. okay, so number of employees is 1 multiplied by number of shares 10,000 multiplied by fair value is 16. okay, because we are getting exercise price 30 multiplied by this expired period that is 2 years and divided by total vesting period that is 3 years. okay, so here we have completed for second year. Now for third year, see during year 3 the entity earning increase by 3% only. okay, so company का earning 3% से ही increase हो गया. therefore the earnings target was not achieved. the executive completes 3 years service, यानी कि इधर vesting period complete हो गया. therefore the satisfied service condition because the earning target was not achieved. okay, 10,000 vested share option have an exercise price of 40. okay, so exercise price 40 है, यानी कि हम लोग का फेयर वैल्यू कितना होगा, फेयर वैल्यू होगा 12. okay, तो इधर ये कुछ नहीं है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो गया, वो सब छोड़ दो. हम लोग को क्या कंडीशन था, 3 इयर्स काम करना है, सो उसने किया तो हम लोग का कंडीशन फुलफिल हो गया. तो इधर हम लोग का ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर सकता है 3 ईयर के बाद, थर्ड ईयर में. ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का 10,000 ही रहेगा और एक्सरसाइज प्राइस 40 है, क्योंकि अर्निंग कितना इंक्रीज हो गया, ओनली बाय 3%. ओके, सी अर्निंग्स हैव इंक्रीज ओनली बाय 3%. ओके, तो कंडीशन क्या था, इफ़ अर्निंग विल इंक्रीज बाय 10% और मोर दैन 10% देन एक्सरसाइज प्राइस विल बी 30. एंड इफ़ इट डजेंट हैपन सो इन दैट केस एक्सरसाइज प्राइस विल बी 40. तो अभी 3%, ओनली 3% से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो गया. इसी वजह से हम लोग का एक्सरसाइज प्राइस 40 हो जाएगा. वैसे भी क्वेश्चन में लास्ट लाइन में दिया है कि एक्सरसाइज प्राइस 40 है फॉर ईयर 3. ओके, अगर वो नहीं दिया होता फिर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते, क्योंकि हम लोग ने चेक किया ना कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो एक्सरसाइज प्राइस 40 है. ओके, सो हियर एक्सरसाइज प्राइस इज़ 40 बिकॉज कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल. दिस 3% से इंक्रीज़ हो रहा है, सो कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल.
exercise price is 40, that's why fair value will be 12. So number of employees 1 multiplied by number of shares, that is 10,000, multiplied by fair value is 12, multiplied by expired period is 3, and total vesting period is 3. Okay, so we have to calculate this to get the cumulative figures. See, 1 multiplied by 10,000 multiplied by 16 multiplied by 1 divided by 3. So we are getting in point, that is 53,333. Okay, like that for second year. 1 multiplied by 10,000 multiplied by 16 multiplied by 2 by 3. So we are getting in point, that is 1,06,667. Okay, now third year. 1 multiplied by 10,000 multiplied by 12 multiplied by 3 by 3. So it is 1,20,000. We are getting 1,20,000. Okay, सो दीज आर द क्यूमुलेटिव फिगर्स, यानी कि टोटल फिगर्स है, तो उसमें से हम लोग को पर ईयर का फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ईयर का सेम ही आएगा 53,333. सो सेकेंड ईयर का माइनस फर्स्ट ईयर का, तो इधर का फिगर मिल जाएगा. सो सेकेंड ईयर का 1,06,667 माइनस 53,333. सो इट इज़ 53,334. ओके, 1-2 रुपये का डिफरेंस चल जाएगा, इतना कुछ नहीं है. नेक्स्ट 1,20,000 माइनस 10,06,667. सो इट इज़ 13,333. 13,333. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस अमाउंट. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टेबल. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. सो आप लोग ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को वेस्टिंग पीरियड चेंज था, मतलब ईयर 2 का बाद में ईयर 3 हो गया, मतलब वेस्टिंग पीरियड चेंज हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या चेंज करा के दिया था, हम लोग को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाता है वो चेंज करा के दिया था, मतलब उसमें कंडीशन लगाया था. और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को जो भी फेयर वैल्यू रहता है उस पर कंडीशन था, मतलब फेयर वैल्यू चेंज हो रहा था. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव ऑब्जर्व दैट इन क्वेश्चन number 2 there was a condition on vesting period, that's why vesting period was changing. In question number 3 there was condition on number of shares which given to the employees, so number of shares were changing. And in question number 4 there was condition on face value, so that's why face value was changing according to the condition. Okay, so here we have completed illustration number 4. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.